Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 2 medical and non-medical stream. Today we are going to pursue with the numericals that is based on chapter 4 moving charges and magnetism. Here are some formulas that we are discussing first. After that we are discussing the numericals, and these are all the formulas which we are drive out in the previous lectures already. Okay, so first one is magnetic field induction B at a point due to linear conductor carrying current I. Remember this one, we have derived the expression using the Biot-Savart law. It is the first application of the Biot-Savart law, that B is given as B is equals to mu naught divided by 4 pi I divided by A sin phi 1 plus sin phi 2, where A is the perpendicular distance of point from the linear conduction. And in case of infinite long conductor, or you can say infinite long straight conductor, this phi 1 is equals to this phi 2 becomes equals to 90 degree, and sin 90 is 1. So क्या आ जाएगा, sin phi plus sin phi 1 plus sin phi 2 की जगह आ जाएगा 2. बाकी सब ऐसे कैसे ही रहने वाला है, दैट इज म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डिवाइड बाय ए, साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2. दैट कम्स फ्रॉम देयर व्हेन phi 1 is equals to phi 2 becomes equals to 90 degrees. Next is magnetic field induction B at the center of the circular coil. At the center of the circular coil. Now this B is equals to mu naught upon 4 pi. 2 pi is the angle made by the whole circle. N is the number of turns. I is the current carried by it divided by R. Mu naught divided by 4 pi 2 pi Ni divided by R, where R is the radius of the coil and N is the number of turns. Next is magnetic field induction at a point on the axis of circular coil carrying current I is given by B is equals to mu naught divided by 4 pi 2 pi Ni A square divided by A square plus X square raised to power 3 by 2. That we already prove in the expression of the magnetic field at a point on the axis of circular coil carrying current in the previous lectures. Okay, so N is the number of turns in the coil and A is the radius of the coil and X is the distance of the point from the center of the coil. And units, of course units are, B is in Tesla. Magnetic field beta हमेशा Tesla में होता है. Current is in amperes, where A and X are in meters. Next, our first numerical is a straight conductor, a long straight conductor carries current 100 ampere. At what distance from the conductor is the magnetic field caused by current is 0.5 into 10 raised to power minus 4 Tesla. So I is given here 100 amperes. We have to calculate at what distance. That means we have to calculate A now, कि कितने डिस्टेंस पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है. मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन, एंड यू नो इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे गिवन किया हुआ है तो आप हमेशा इनफाइनाइट कंडक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई क्रॉस 2i डिवाइड बाय ए. अब आपको ए निकालना है तो ए इस साइड आ जाएगा, बी को हम नीचे ले आएंगे. एंड यस, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई की बेटा हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, दैट इज 10 रेज़ टू पावर -7. ये आपको रिमेंबर रखनी है. ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू आई करंट कितना दिया 100 डिवाइड बाय ए को इस साइड लिया, बी को नीचे लिया, दैट इज 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4. बी दिया हुआ ना, सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 मीटर. सिंपल. Next is find the expression for the magnetic field induction at the center of coil which is in the form of square of side 2a carrying current I. अब हमें magnetic field इस स्क्वायर के सेंटर में निकालनी है जिसकी साइड गिवन है 2a. ओके, अब स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं. तो हम एक साइड को लेके हम मान लेते हैं सिर्फ हम AD जो है वायर, उसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकाल रहे हैं. फिर इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. सो लेट्स स्टार्ट. B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई I बाय A sin phi 1 प्लस sin phi 2 होता है. अब आपको पता है कि हमेशा जो स्क्वायर है उसकी जो साइड्स आपस में है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बट जो डायगोनल्स है वो कितना एंगल बनाती है बेटा 45 डिग्री. ओके, सो हियर इज एंगल. तो ये ऑब्जर्वेशन O पॉइंट का D के साथ बन गया एंगल 45 और A के साथ बन गया 45.
सो sin 45 प्लस sin 45 लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे, क्योंकि phi 1 प्लस phi 1 इज इक्वल टू phi 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री हियर इन दिस केस, इन दिस न्यूमेरिकल। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कितनी होती है बच्चे, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय, अब a क्या है, रेडियस है, उसमें रेडियस था तो यहाँ पे सिर्फ r पुट किया हमने, ओके, मल्टीप्लाई बाय sin 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2, उसके बाद है हमारा 10⁻⁻7 आई डिवाइड बाय r इंटू 2 डिवाइड बाय √2। अब हमें क्या नहीं पता, यस क्या नहीं पता हमें, i और r की वैल्यूज हमें पुट करनी है, पर उससे भी पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, OA, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक तो हाफ है, पर ये डिस्टेंस कितना है ताकि हम ये r निकाल सकें। सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल A, B एंड C, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर, पाइथागोरस लगाइए बेटा सिर्फ यहाँ पे, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 8a स्क्वायर दैट इज 2 रूट 2a, ये समझ में आया। उसके बाद OA क्या होगा, इसका हाफ, AC पूरा है, OA इसका हाफ हो जाएगा, तो OA कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ AC दैट इज 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज रूट 2a, क्योंकि 2 के साथ 2 कट ऑन हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये छोटी ट्रायंगल ले ली OAE, ये है E, ये पॉइंट E है बेसिकली, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है OAE यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद OA स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर, OA का स्क्वायर कितना है, रूट 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, सो r इज इक्वल टू a आ जाएगा। दैट मीन्स कि जितना इसका रेडियस है उतना ही वो डिस्टेंस है, दैट मीन्स दिस इज द एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट। अब r इज इक्वल टू a है, सो I डिवाइड बाय a इंटू 2 डिवाइड बाय रूट 2। मैंने यहाँ पे r इज इक्वल टू a क्यों प्रूफ किया, क्योंकि मुझे इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी r गिवन नहीं था, r मैंने खुद से लिया था, ठीक है। मुझे क्या गिवन था, 2a, 2a मीन्स इसका एक साइड का जो है लेंथ वो दिया गया था मुझे, दैट इज वाई अगर मुझे आंसर भी निकालना है तो मैं सिर्फ वही कॉन्स्टेंट यूज कर सकती हूँ जो मुझे न्यूमेरिकल में गिवन है, इसीलिए ये पूरी कहानी रचेगी। पहले ये हमने बड़ी ट्रायंगल ली, उसमें से निकाला OA, फिर ये छोटी वाली ट्रायंगल ली, उसमें से निकाला r इज इक्वल टू a, ताकि हम न्यूमेरिकली आंसर उस कॉन्स्टेंट में निकाल सके जो हमें ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। So that is why b is equal to 10⁻⁻7 into I by r था, यहाँ पे r की जगह सिंपल क्या पुट कर दिया, a मल्टीप्लाई बाय 2 बाय रूट 2, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। सो आंसर कितना आ गया, b is equals to 4 रूट 2 into 10⁻⁻7 क्रॉस I by a, okay। Next numerical is two wires A and B have the same length, L is equals to 44 centimeter and carry current of 10 ampere. Each wire A is bent into circle and B wire is bent into square, which will produce greater magnetic field at the center। हमारे पास दो वायर्स हैं, दोनों ही 44 सेंटीमीटर की लेंथ किए हुए हैं, दोनों में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ए वायर को मैंने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया और बी वायर को मैंने बेंड कर दिया स्क्वायर में। अब दोनों में से कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके। सो पहले मैंने गिवन लिखा, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ए को मैंने बेंड किया सर्कल में। अब ए का ही मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है, सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाय 2a। म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई की वैल्यू थी 10⁻⁻7, तो अकेले म्यू नॉट की वैल्यू क्या रह जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई मुझे दिया हुआ है 10 एम्पियर डिवाइड बाय 2 इंटू ए। अब मुझे लेंथ दी हुई है 44 सेंटीमीटर ए की, वायर की पहले ही मुझे लेंथ गिवन थी 44, फिर मैंने उसको सर्कल में बेंड किया। अब सर्कल का सरकमफ्रेंस जितना होगा उतनी इस पूरी वायर की लेंथ होगी, क्योंकि ये वायर पूरी की पूरी यूज की गई है सर्कल बनाने के लिए। तो 4 पाई is equals to circumference of the circle, that means it is equals to 2 pi a, because a we are carrying here as a
रेडियस ऑफ द सर्कल. सो 2 पाई a इज इक्वल्स टू 44. तो a कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 44 डिवाइड बाय 2. तो सिंपल a की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और मैग्नेटिक फील्ड a वाले केस में फर्स्ट a वायर में निकाल लीजिए. दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 44 डिवाइड बाय 2 पाई. अब ये 2 पाई डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा. So that would becomes 8 into pi multiply by 10⁻⁷ into 10. 2 बार पाई आ जाएगा ऊपर. उसके बाद 8 इंटू पाई की वैल्यूज पुट ऑन की गई है. इन सबको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 8.96 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला. नेक्स्ट है बी वायर को मैंने बेंड किया था स्क्वायर में. तो अगेन मैं इसको स्क्वायर में ले रही हूँ. इसकी पूरी लेंथ 44 है. तो हर साइड इक्वल होती है स्क्वायर की. तो आपस में 4 हिस्से में बच जाएगी. तो 44 डिवाइड बाय 4 कितना हो 11 सेंटीमीटर. इसका मतलब हर साइड की अब लेंथ कितनी होगी 11 सेंटीमीटर. अब अगर ये 11 सेंटीमीटर है पूरी तो इसका हाफ कितना आ जाएगा 5.5. ओके. फिर उसके बाद मैंने अब क्या किया है एक ट्रायंगल लिए BCD. ये स्क्वायर वाले केसेस में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. 2 बार ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी. BCD ट्रायंगल लिया मैंने. ठीक है. BCD ट्रायंगल में मुझे क्या निकालना है BC. पहले हम डायगोनल निकालेंगे. फिर ये छोटा सा हिस्सा निकालेंगे. फिर इस ट्रायंगल को लेके हम क्या निकालेंगे ये A रेडियस. मतलब ये डिस्टेंस इस वायर्स इस स्ट्रेट कंडक्टर से जो मैंने एक साइड मानी है इसका O के साथ कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ये सब निकालने के लिए हमें 2 ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगे C है ना. सो BCD ली पहले मैंने ट्रायंगल. BC स्क्वायर प्लस DC इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर. तो 11 स्क्वायर 121 121 242 का स्क्वायर रूट दैट इज 15.5 आएगा अप्रॉक्स. सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लिया. अब ये लेनी है मुझे छोटी सी ट्रायंगल DCO ट्रायंगल या DOC ट्रायंगल. ठीक है ना. उसके बाद DO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर. क्योंकि मुझे क्या निकालना बेटे A निकालनी है तो मैंने डायरेक्टली निकाल ली. दिस इज बेस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. दैट इज अब OC कितना है OC कितना दैट इज द हाफ ऑफ BC मुझे पता है 15.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर है. तो OC कितना हो जाएगा 15.5 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5.5 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करके सब आपके पास जो A है वो आ जाएगा 5.45 सेंटीमीटर. तो बस खत्म कहानी. फॉर्मूला यूज किया अब हमें. अब एक स्ट्रेट वायर की वजह से आएगा μ0/4 पाई I डिवाइड बाई A sin phi1 प्लस sin phi2. अब मेरे पास 4 है 1 2 3 4 साइड्स हैं. तो 4 के साथ मैंने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया मल्टीप्लाई. तो 4 इंटू 10 μ0 डिवाइड बाई 4 पाई I डिवाइड बाई A. वही स्क्वायर के केस में जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जैसे कि मैंने इस केस में लिया था अगर वो सेंटर पे है तो वो phi1 और phi2 कितना बनेगा 45 डिग्रीज. तो यहाँ पे भी phi1 और phi2 कितना होगा बच्चे 45 डिग्रीज. सो दैट इज sin 45 प्लस sin 45 दैट इज 2√2. अभी सबको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 10.3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. Next numerical is the electron in an hydrogen atom circle around a proton with a speed of 2.18 into 10⁻⁶ meter per second in an orbit of radius 5.3 into 10⁻⁻11 meter. Calculate the equivalent current that is magnetic field produced. अब मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है. ये प्रोटोन है इसके अराउंड हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इनसर्कल कर रहा है अराउंड द प्रोटोन. इसकी वेलोसिटी दी हुई है इसका रेडियस दिया हुआ है. मुझे क्या निकालना मैग्नेटिक फील्ड. तो वो कैसे निकलेगी. अब मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगर मैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है दैट इज μ0/2r इंटू आई. μ0/2r इंटू आई. अब मुझे I नहीं पता यहाँ पे. सो I निकालने I का फॉर्मूला क्या होता है करंट डिवाइड बाय टाइम. मुझे करंट भी नहीं पता. पता है करंट दैट वुड बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू N ही होता है ना. करंट इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय T और Q किसके बराबर होता है N इंटू E. V दिया हुआ है हमें 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड.
आर दिया हुआ है मुझे 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और इसने क्या कवर किया है, एक पूरा सर्कल कवर किया है। सो 2πr इसका रेडियस होगा, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻⁻10। मुझे टाइम पीरियड चाहिए ना, सो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम। अब करंट के लिए टाइम तो आ गया, पर क्यू नहीं आया। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर में। अब आया याद। अब n इज इक्वल टू क्या है, 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1 है। E कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q की वैल्यू सीधा लिखी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इस Q की। ओके, T की वैल्यू हमें ऑलरेडी निकाली है 1.5 इंटू 10⁻⁻16। तो इन सबको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 1.06 इंटू 10⁻³ एम्पियर। So B is equals to mu naught divided by 2 I divided by R. So 4 pi into 10⁻⁻7 mu naught की वैल्यू, that is I की वैल्यू कितनी है, 1.06 into 10⁻³ एम्पियर डिवाइड by 2 into R, that is 2 into 5.3। इन सबको सॉल्व करके आपके पास आएगा 12.56 टेस्ला। Next is a circular coil of 120 turns and the UAN number of turns, has a radius of 18 centimeter and carries a current 3 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil, at a point on the axis of coil? दोनों के लिए निकालना हमें। अब एट द सेंटर के लिए क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट डिवाइड बाय 2a इंटू आई इंटू, अब नंबर ऑफ टर्न्स जुड़ गया है साथ में, तो सिंपल मैंने वैल्यू पुट किया बेटा। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स जो है 120 इंटू करंट कितना है 3 एम्पियर डिवाइड बाय 2a, दैट इज 2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻2, दैट इज 125.6 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। अब b कितना है, ऑन द एक्सिस ऑफ कॉइल, क्या क्या फॉर्मूला था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि x इक्वल टू a दिया हुआ है यहाँ पे। सी, a circular coil has a radius of 18 centimeter, carries a current of 3 ampere. What is the magnitude of the magnetic field? और सेकेंड में क्या दिया हुआ है, at a point on the axis of coil at a distance equal to radius, that means x equal to a here। तो मैंने x equal to a पुट कर दिया, सिंपली 2a स्क्वायर आ गया। अब इन सबको सॉल्व किया मैंने, कैसे, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन की वैल्यू 120, आई की वैल्यू 3 एम्पियर, a स्क्वायर 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, क्योंकि 18 सेंटीमीटर था ना बच्चे, सो उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻2 के साथ, डिवाइड बाय 2 a स्क्वायर इंटू की पावर 3/2, दैट इज 2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर की 3/2। आफ्टर दैट, अब ये देखो, ये सेम है ये सेम है, तो इनकी पावर्स इकट्ठी कर ली मैंने, 2 की पावर्स इकट्ठी कर ली, 2 की पावर्स अपन ने नहीं इकट्ठी की, 2 इंटू 2 की पावर, ये देखो अलग से आ गई 3/2, ऊपर तो सेम ही है, डिवाइड बाय इसकी पावर भी 2 इंटू 3/2 की, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर 2 है नीचे 3 है वैल्यू, तो 2 माइनस 3 पावर इकट्ठी की कितना होगा -1, और उसके बाद 2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 प्लस 1, क्योंकि बेस सेम पावर क्या होती है बच्चे, ऐड, तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर 5/2। अब ये -1 में है तो सीधा नीचे आ गई। अब 2 की पावर 5/2 को कैसे सॉल्व करोगे, दैट मीन्स 5 बार 2 लिखोगे, फिर उसका क्या करोगे रूट। अब ये दो बाहर आ जाएंगे, तो 4√2 आ जाएगा सॉल्व करके, 4 के साथ 4 कट ऑन, दैट मीन्स उसके बाद पाई की वैल्यू पुट की 3.15 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 120 इंटू 3 डिवाइड बाय √2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻2। उसके बाद 10 की पावर इकट्ठी की मैंने, 10⁻⁻7 प्लस 2, 10⁻⁻5 बन गया, 3.14 इंटू 20 डिवाइड बाय √2, ये आ गया 3.14 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2 डिवाइड बाय √2, 3.14 इंटू 2 डिवाइड बाय √2, 2 डिवाइड बाय √2 कितना होता है √2, क्योंकि √2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, एक √2 कट जाएगा, क्या बचेगा √2 इंटू 10⁻1 है, यहाँ पे -5 है, कितनी बच गई 10⁻⁻4,
3.14 into 1.414 into 10 to power -4, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये कितना आ जाएगा 4.43996 टेस्ला. Next is a current of 5 ampere is going from north to south in a straight wire. Find the magnetic field due to 1 centimeter piece of wire at a point 1 meter northeast from the piece of wire. अब south से लेके north तक जा रहा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस. 1 सेंटीमीटर मतलब बहुत छोटा. दैट मीन्स अब मुझे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बहुत छोटे एलिमेंट की वजह से निकालनी है. दैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट dB, magnetic field due to the small element. So dl is equals to 1 centimeter 10 to the power -2 meter. So I is equals to 5 ampere, R is equals to 1 meter given है. और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में निकालनी है. दैट मीन्स जो थीटा है दैट वुड बी 45, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट बीच में है, तो दैट वुड बी 90 डिवाइड बाई 2, दैट इज 45 डिग्रीज. And dB is equals to mu naught divided by 4 pi I dl sin theta divided by r square according to the Biot-Savart law. So that would become mu naught upon 4 pi किसके बराबर होता है, 10 to the power -7 की. I दिया हुआ है 5 एम्पियर, dl दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 to the power -2. आ गया यहाँ पे dl की वैल्यू sin थीटा sin 45 डिवाइड बाय r का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है. सो ये सॉल्व करके आ जाएगा 3.5 into 10 to the power -9 टेस्ला. sin 45 is 1/√2. ओके. Next is a circular segment of radius 10 centimeter subtend an angle of 60 degree. At the center of a current 9 ampere is going through it. Find magnitude and direction of magnetic field produced at center. अब center में निकालना है magnetic field, तो उसका फॉर्मूला था mu naught upon 4 pi I डिवाइड बाई a into 2 pi था यहाँ पे, पर यहाँ पे 2 pi नहीं है क्योंकि इस आर्क की वजह से हमें निकालनी है. सो लेट इट टेक बीन एज थीटा, और वही थीटा कितना दिया हुआ है π/3, दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें थीटा हमेशा रेडियन में ही पुट करना होता है व्हेन वी आर पुटिंग वैल्यूज टू फाइंड द पी. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया 10 to the power -7. आई दिया हुआ है मुझे 9 एम्पियर, सी दिस इज 9 एम्पियर, और आर दिया हुआ है मुझे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 into 10 to the power -2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. थीटा इज 60 डिग्री, 60 को π/180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, π/3. रेडियन में कन्वर्ट कर लो 60 डिग्री को, दैट इज 10 to the power -7, 9 की पावर 9 10 to the power -1 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 3, 3 9 कट गया, और इसके बाद 10 to the power -1 है, ये ऊपर जाके +1 हो गया, -7 + 1 10 to the power -6 into 3 into 3.14, that becomes 9.42 into 10 to the power -6 Tesla. That's all. Thank you so much.